Hello students, welcome you all. Now we will take another case of pair of linear equation graphical representation. Suppose graphs of linear equations are like this. We know that graph of linear equation is a straight line. Now suppose this is x and y axis. Suppose one equation has line like this. This is equation number 1, and another equation has line like this. This is second equation. So in this type of situation we can say that lines are parallel and no common points between two lines. There are infinite solution of this equation, and also there are infinite solutions of this equation, but no common solution. That means pair of linear equation has no solution, we can say like that. So these are the main points. In this second case, lines are parallel. This is first point. And second point, pair of linear equations has no solution because no common point. Okay. Now this is third case. Third case, what is the situation? Suppose these are axes, x-axis and y-axis. Suppose we are having two equations because we are talking about pair. So we are having two equations. Suppose first equation has line like this. This is first equation. And second equation has line above this line. Matlab this type of line is called coincident lines. Both the lines are one above another. दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है. Okay, both the lines are overlapping to each other. So we can say that all the infinite points on the line are common. That means infinite solution this pair of linear equation has. Okay, so this is third point. Lines are coincident. This type of lines are called coincident, and pair of linear equations has infinite solution. So what is the conclusion? Suppose we are talking about only one linear equation. Suppose एक ही linear equation है, तो उसका क्राइटेरिया क्या था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है. और दूसरा सेकंड पॉइंट, लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये दो क्राइटेरिया थे लीनियर इक्वेशन के. लेकिन अगर हम पेयर की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन, तो उसमें ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़. सपोज लाइन्स आर लाइक दिस, they are called intersecting lines. Suppose lines like this, they are called parallel lines. And suppose lines are this type, then they are called coincident lines. मतलब there are three possibilities. Lines are intersecting, only unique solution means one and only one solution is there. We will get only one solution. Okay, suppose in lines are like this. In this situation no solution, and in this situation infinite solution. मतलब लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं उसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ है. या तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे. ओके, तो दिस देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pair of linear equations. Okay, अब एक नया कंसेप्ट लेते हैं. देखो, सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर. अब ये तो अभी बात हो गई वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा. पहले हम दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स वाई एक्सिस के बीच में,
और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, मतलब ओवरलैपिंग। तो ये 3 केस हमें ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा। बट विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ, हाउ वी कैन जज that equations are like this or this or this without graphical representation? तो ये थियरी उसी की है। सपोज वी आर हैविंग 2 लीनियर इक्वेशंस लाइक दिस, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1। जनरली एक होते हैं तो हम ax प्लस by प्लस c लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमारे पास 2 है तो वेरिएबल तो चेंज नहीं होंगे ना, वेरिएबल तो x और y यही रहेंगे। कोएफिशिएंट चेंज हो गए तो हम इधर a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 कर देते हैं। तो पहले वाला इक्वेशन हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज सेकेंड वन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट केस। सपोज ये कोएफिशिएंट का हमें रेशियो लेना है, a1 बाई a2 मतलब x के कोएफिशिएंट है दोनों, बोथ आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो लो और दूसरे y के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो b1 अपॉन b2। और ये अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होगा? वी कैन से दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मतलब ये वाला केस हुआ, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जाहिर सी बात है इंटरसेक्टिंग है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वी विल गेट ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये रेशियो से हमें पता चलेगा, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है सपोज 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये रेशियो कितना हुआ? 2/5। a1 अपॉन a2 का रेशियो हुआ 2/5 और इसका रेशियो हुआ 3/7, और ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी हमको अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो। फिर ये दूसरा वाला केस, ये गलत है, ये वाला दूसरा वाला केस है। ये पहला वाला जो रेशियो है a1 अपॉन a2 और दूसरा वाला रेशियो इक्वल होता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ये दोनों रेशियो इक्वल है, लेकिन तीसरा वाला जो रेशियो है ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो दिस इज द क्राइटेरिया। पहले वाला 2 रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेकिन लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो लाइन्स आर पैरेलल। इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी कैन से दैट लाइन्स आर पैरेलल, मतलब हमें इस तरह की लाइन मिलेगी, लाइन्स आर पैरेलल। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, बिकॉज पैरेलल लाइन का तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो हमने अगली थियरी में कर लिया था। ओके, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक इक्वेशन है सपोज 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला रेशियो हुआ 2/4 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो हुआ 1/2 का, और दूसरा वाला रेशियो है 3/6। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी 1/2 ही हुआ। तो पहला वाला 1/2, दूसरा वाला भी 1/2, मतलब दोनों इक्वल। और ये तीसरे के साथ इक्वल ना होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो इज़ 5/7।
तो पहले A1 A2 A1 by A2 और B1 by B2 शुड बी इक्वल एंड इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, तभी ये केस बनेगा। क्लियर? So lines are parallel, we can say that lines are parallel and pair of linear equation has no solution. Okay, and now third case, तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं, if all the three ratios are equal, मतलब A1/A2 is equal to B1/B2 and is equal to C1/C2, तीनों इक्वल, तो हमारा थर्ड वाला केस हुआ कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स कोइंसिडेंट है, मतलब कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग टू ईच अदर एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। ओके, तो विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ ओनली बाय दिस कोएफिशिएंट्स of both the equations we can predict which type of situation is there. Okay, suppose line are intersecting, then unique solution. Lines are parallel, then no solution, and lines are coincident, then infinite solutions. Okay, तो ये हमारा ये अगला पॉइंट था। अब ये एक MCQ के लिए कभी कभी आता है, तो देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन वाला केस हुआ ना, नो सॉल्यूशन, तो इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर, ये MCQ के लिए है। इनकंसिस्टेंट पेयर मीन्स नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर नो सॉल्यूशन मतलब लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल लाइन का ही सॉल्यूशन नहीं होता है ना, तो नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन्स, तो इसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड वाला पॉइंट देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन होगा, मतलब दो केस बाकी हुआ ना, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा एक सॉल्यूशन, और या तो इनफाइनाइट। तीन केसेस हैं हमारे पास, तो तीन केसेस में एक में ये सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब नो सॉल्यूशन, उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अगर ये दोनों में से कोई भी एक केस होता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अभी तक की जो भी थ्योरी हमने की, ओके, वो लाइंस किस टाइप की होगी पेयर की, तो हमारे पास तीन केसेस है। देयर आर थ्री केसेस, आइदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ओके, और इसमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? तो इसमें पहले वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब अगर ये इसमें इस तरह की सिचुएशन है और हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये हमें फाइंड करना है। इसमें तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, पैरेलल है तो, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास मेनली देखो, तो मेनली देयर आर टू मेथड्स। टू मेथड में पहले वाली कौन सी है? ग्राफिकल। ओके, और दूसरे वाली होगी, उसको बोलते हैं एल्जीब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था। ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस ये ग्राफ हुआ, और ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, या तो ग्राफ में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये पैरेलल लाइंस आएगी, तो हम बता सकते हैं कि नो सॉल्यूशन। और अगर इस तरह की लाइन मिली हमें, कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफ में,
then we can say that there are infinite solutions. ओके, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम ये करेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी इसमें 3 तरह की मेथड्स है। एल्जेब्रिक सब मेथड्स, एल्जेब्रिक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके हमें कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सिंपली कैलकुलेट द इक्वेशंस। ओके, जो इक्वेशन आपको दिए हैं लीनियर इक्वेशन, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। और ये किस तरह से करना, उसके लिए ये 3 मेथड है। पहले वाली है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, दूसरी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और तीसरी मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये तीनों मेथड की एक एक्सरसाइज है हमारे कोर्स में, NCERT सिलेबस में। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन की एक पूरी एक्सरसाइज है, तो फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन की एक पूरी, और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तीसरी। और इस तरह एक एक्सरसाइज है, और पर्टिकुलरली एक एक्सरसाइज एक मेथड के लिए है, तो हम जो एक्सरसाइज लेंगे वो उसी मेथड से करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, इफ़ दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनीथिंग, you can do or you can solve linear equations by any method whatever you like. ओके, जनरली एलिमिनेशन मेथड इज सबसे इजी है, ये सेकंड वाली, तो हम एलिमिनेशन प्रीफर करेंगे। सब्सटीट्यूशन कोई कोई इक्वेशन में बहुत टफ होती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसके शार्प और प्रिसाइज हो वो ही कर सकता है, क्योंकि उसमें माइनस साइन की बहुत मिस्टेक आती है। ओके, तो जिसको ये सब प्रॉब्लम होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके लिए सही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट। ओके, तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, इफ़ दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, यू कैन डू और यू कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय एनी मेथड वॉट एवर यू लाइक। ओके, तो अगले वीडियो से हम ये सम्स चालू करेंगे, ये पहले वाली मेथड से, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, बाय बाय।